Okay, so it's already 5:05. So let's come back to the topic. Let's start our training. So hello everyone who know me. I'm Akshay Kamble. I'm a Power BI trainer. I'm a data analyst. I have around 6 years of experience in data analyst. इसके पहले I was working with Cognizant. उसके पहले I was working with I2E Consulting, Utegration. I work with different companies. I have my own company by the name of BI Academy, जहाँ पर मैं क्लासेस लेता हूँ, पावर बीआई सिखाता हूँ, डेटा एनालिस्ट सिखाता हूँ. उसके अलावा आई हैव आल्सो हैव अनदर कंपनी बाय द नेम ऑफ प्रो विजुलाइजर्स, जहाँ पर आई टेक फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स. सो प्रो विजुलाइजर इज अ बिग कंपनी, उसके अंडर आई हैव अ बीआई एकेडमी. इट गोस लाइक दैट. So this year, why we are doing this free trainings and all? इसके पहले भी I was doing a free training, but only for my students, the people who have enrolled for my batches, the people who have enrolled for my classes. I was only doing the free training for them, the LinkedIn optimization class, resume building, वगैरह वगैरह. But from this year, I thought of making it publicly available to everyone instead of only restricting to my students. The reason of it is because last year was the biggest year for us. Uh, we did a lot of things by the grace of God and with your support. So that's why my wife, she's my partner in the company. She said, why to restrict this for limited students? Let's open it. तो जो लोग नहीं फाइनेंशियली उतने स्टेबल है, जो लोग मेरा क्लासेस अफोर्ड कर सके, दे विल आल्सो गेट सम बेनिफिट फ्रॉम अस, राइट. और वो भी सोसाइटी से मुझे मिला है, तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिविंग बैक टू द सोसाइटी. दैट्स इट. तो कोई एंड में मैं अपना कोई क्लास नहीं बेचने वाला हूँ, डोंट वरी. राइट, आज के क्लास के बाद या फिर सीक्वल का भी जो क्लास होगा, उसके भी बाद में 6 दिन के बाद आई विल नॉट बी सेलिंग माई कोर्स. तो एसक्यूएल में हम लोग सिर्फ एसक्यूएल का बात करेंगे, एंड उसमें देयर विल बी नो सेलिंग. इट विल बी कंप्लीटली ट्रेनिंग. 100% जितना भी मुझे आता है, आई ट्राई टू टीच एवरीथिंग. अगर वो 6 घंटे में नहीं हो पाता है, आई एक्सटेंड इट, राइट. कब भी एक्सटेंड होगा उसके बारे में मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया, बिकॉज आई एम नॉट श्योर कैसे होगा, लेकिन आई विल डू दैट. ठीक है. कमिंग बैक टू द टॉपिक टुडेस क्लास. इसके पहले वी हैव डन लिंक्डइन बिल्डिंग क्लास, वी हैव डन रेज्यूम बिल्डिंग क्लास, वी हैव डन lot of different things. Today we are doing this training on portfolio building. Why portfolio building is important? Because if you know me or if you have learned from me, so you must have you must have remember that I have spoken that we should have at least a portfolio to show to the client. So whenever an interviewer asks us that, so tell me something about yourself, या फिर कभी भी कोई इंटरव्यूअर आपको बोलता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, या फिर कुछ भी क्वेश्चन पूछता है, सो आई ऑलवेज टेल टू माय स्टूडेंट्स दैट ऑलवेज एंड द क्वेश्चन, राइट. अपना जो क्वेश्चन है, कि जो भी आप बोलोगे अपने बारे में, माय नेम इज दिस एक्स वाई जेड, always end this with your portfolio. You can say that, sir, if you don't mind, can I show you my portfolio? That portfolio will speak lot of things about me. And right, तो आप अपना पोर्टफोलियो अगर उनको स्क्रीन शेयर करके दिखाओगे, तो आपका एक अलग इंप्रेशन क्रिएट होगा. दैट विल क्रिएट अनदर इंप्रेशन इन फ्रंट ऑफ दैट इंटरव्यूअर, एंड दैट विल हेल्प यू to crack the interview faster. So it will play a key role to get the job, right? So that's why we should always have a portfolio with us. The portfolio can be anywhere. LinkedIn पे आप बना सकते हो अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है. You can create a portfolio in on a website, on anywhere, GitHub, whatever, whichever place you feel good. But today I will be doing a portfolio on free platform, that is Google, and Devi Prasad is here with us, and he will be doing the training for us. Devi Prasad is my student. Talking about him is uh, he was an Odisha batch. He is my Odisha batch student, and वो होता है ना कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं आपके बड़े ग्रुप में जो इजीली कनेक्ट हो जाते हैं आपके साथ. So जैसे कि there are few students I know, I can see those students, and recently I saw he have created a portfolio on Google, and that's the reason I requested Devi Prasad कि एक सेशन हो जाए सभी के लिए. And he is so kind that उसने अपने टाइम में से he arranged some time for us, and he is doing this thing for us. The training will be first time. Devi Prasad is doing the session for the first time. Prasad, I have made you co-host. Now you can share your screen and you can guide everyone. Thank you guys. I'll be Okay, still sir. there, but Devi Prasad will be taking. First of all, good afternoon all, and thank you, sir, for giving me an opportunity. Am I audible? Yeah, audible. Yeah. Yes, audible. Yeah, Continue. you're audible. Yes, Robert. Now I am going to share my screen.
Is it visible to all? Yes, Yes. it's Today, visible. today we are having our session on how to build a portfolio by using Google Sites. And as you know, portfolio is important for is like a visual resume, and it contains a lot of things like your achievements, your skills, and your projects and your goals, everything. You can show to the recruiter and as well as any HR person when we go for a interview. लाइक आप लोग को पता ही होगा जैसे कि कुछ मार्केट में जाओगे तो कुछ भी खरीदने के लिए जो भी दुकान अच्छे से डेकोरेट हुआ होगा तो लोग ज्यादातर लोग वही दुकान को प्रिफर करते हैं लाइक दिस आपका पोर्टफोलियो एंड आवर आपका लिंक्डइन वगैरह जितना भी अच्छे से होगा जितना भी परफेक्ट होगा तो आपका डिमांड उतना ही रहेगा तो before starting I'm going to share my portfolio to all of you. Just have a look. This is my portfolio. I built it by using Google Sites, and it contains three major pages like home pages, which contains about me and the position which I am looking for, and with my functional areas, my skills, with my some of my project highlights and my education also work experience and uh, now we will go to our second page which is my project page. I make a project page. इधर आप लोग को क्या करना है आप सबको अगर पॉसिबल रहेगा तो आप इंडिविजुअल सब प्रोजेक्ट एक ही पेज में ऐड कर सकते हैं लेकिन बट मैं इसको डिफरेंट पेजेस बनाया जैसे कि पावर बीआई के लिए अलग सा पावर बीआई प्रोजेक्ट्स you can see here my power bi projects and its descriptions also excel projects it will take time for loading yeah you can see all these projects and after that my contact I have created a contact page, so whoever want to contact with me, he can connect with LinkedIn. Also, can send mail. Also, contact with my phone number. Uh, so now we are moving towards to create a portfolio. How to create a portfolio? I am going to share. जैसे कि पहले हम गूगल में जाके गूगल साइट्स आप लोग सर्च कर सकते हो तो आपको पहला वाला ऑप्शन ही आ जाएगा sites.google.com और इसके लिए आपको जिस पीसी में काम कर रहे हो तो उसमें आप सबको गूगल का जो जीमेल अकाउंट लॉगिन होना चाहिए तो आप उसको पहले ओपन करना है आपको फिर गो टू द सेकेंड ऑप्शन लाइक पोर्टफोलियो ऑप्शन there are multiple options for project health center event but you have to go to the portfolio option you can use this blank site also इसमें क्या है आप खुद से सब जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा लेकिन आपको अगर पोर्टफोलियो साइट आप लोग ये सिलेक्ट करोगे तो आपको कुछ बाय डिफॉल्ट मिल जाएगा आप उसको सिर्फ एडिट कर सकते हो तो हम पोर्टफोलियो साइट ओपन कर रहे हैं अभी ये अभी हमारा पोर्टफोलियो साइट ओपन हो गया सो पहले मैं आपको इसका जो इंटरफेस है उसके बारे में बताता हूँ इधर जो है आपका डॉक्यूमेंट का नाम दे सकते हैं जैसे कि आपको पोर्टफोलियो रखना है तो पोर्टफोलियो नहीं तो प्रोफाइल कुछ भी नाम दे सकते हो और ये जो है ऑनडू रिडू बटन ये तो सबको पता ही होगा और उसके बाद ये प्रीव्यू ऑप्शन है इसका काम है कि आपको कुछ ये बनाने के बाद आप कैसे वेबसाइट दिखेगा वो आप प्रीव्यू कर सकते हो और इधर से लिंक कॉपी कर सकते हो और उसके बाद ये शेयर विथ अदर्स मीन्स आप किसी को अगर शेयर करना है आपका पोर्टफोलियो तो आप इधर से शेयर कर सकते हो
और ये तो सेटिंग है, इसमें सेटिंग में आपको जो कस्टमाइजेशन करना है यहाँ पे कर सकते हो। और ये पब्लिश, आपको ये वेबसाइट क्रिएट पेज क्रिएट करने के बाद आप पब्लिश में क्लिक करने के बाद ही ये पब्लिश होगा और लिंक जनरेट होगा। आप देख सकते हो ये लिंक वाला ऑप्शन अभी हाइड है, ये पब्लिश होने के बाद ही हाईलाइट होगा। तो उसके बाद हम जाएंगे कि हमारा जो ये साइड वाला नेविगेशन है वो वहां पे जाएंगे। जस्ट गिव मी 1 मिनट। पहले हम थीम से स्टार्ट करते हैं। अभी थीम्स क्या है, आपको ये जो आपका पेजेस का जो थीम्स है आपको प्री डिफाइन मिलता है। यहाँ पे आप किसी भी फॉर्मेट को चूज कर सकते हो। जैसे कि आप इसको क्लिक क्लिक करोगे तो आपका जो लेटर वगैरह और बैकग्राउंड वगैरह यहाँ से चेंज कर सकते हो आप। आपके मैं अभी ये वाला सिलेक्ट कर रहा हूँ, डिप्लोमाट बोल के। उसके बाद हम जाएंगे पेजेस में। पेजेस में क्या रहता है, आपको जो जितना भी पेजेस ऐड करना है, जैसे कि मेरे वाला प्रोफाइल में दिखाया था आप लोग को होम पेज, प्रोजेक्ट पेज, कॉन्टैक्ट पेज। वैसे ही आपको यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मिलेगा होम पेज, अबाउट पेज और प्रोजेक्ट पेज। तो सो आप लोग इसको ही आप तीनों को यूज कर सकते हो। नहीं तो आप खुद से कुछ ऐड करना है तो इधर एक यू कैन फाइंड हियर प्लस इसमें आइकन फॉर भैया आर्ट। हेलो। हाँ हेलो। हम भैया इसमें कुछ डायनामिक इफेक्ट डाल सकते हैं क्या? जैसे हम एचटीएमएल सीएसएस में होवर फॉर डालते हैं, वैसे कुछ हो सकता है क्या? नहीं नहीं, ये इसमें कुछ कुछ ऑप्शन है, मैं आपको बता रहा हूँ, वो ये आगे जाके बताऊंगा। सब नहीं है, बहुत थोड़ा थोड़ा ऑप्शन है। तो ये बेसिकली जस्ट फॉर शोकेस योर प्रोजेक्ट्स, दैट्स इट। इसमें जैसे कि आप पेजेस ऐड करने जाओगे तो आपको इधर प्लस सिंबल है, यहाँ पे आप न्यू पेज बोल के ऐड कर सकते हो। पेज का नाम भी कुछ भी दे सकते हो। जैसे कि मैं अभी इसको सपोज, मेरा तो प्रोजेक्ट पेज है, मैं कॉन्टैक्ट पेज क्रिएट करूंगा। तो कॉन्टैक्ट ऐड किया, तो अभी देखो आपके हिसाब से कॉन्टैक्ट ऐड हो गया। तो इसको अभी आपको ऐसा करना है कि कॉन्टैक्ट पेज को आपको नीचे रखना है, प्रोजेक्ट पेज को ऊपर रखना है। तो जस्ट सिंपल थ्री डॉट को क्लिक करना है, सॉरी ये कॉन्टैक्ट को क्लिक करना है और उसको नीचे ड्रैग करना है और प्रोजेक्ट पेज को ऊपर लेना है। और यहाँ पे जो अबाउट पेज है, यहाँ पे आपको सब चीज मिल जाएगा। जैसे कि यू कैन फाइंड वर्क एक्सपीरियंस and education and all. But I have a suggestion, always try to keep them in home page only। मीन्स आप सबको जो भी आपका अबाउट है, जो भी आपका एजुकेशन एक्सपीरियंस वगैरह है, वो आप सबको होम पेज में ही ऐड करोगे तो बेटर रहेगा। सो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ये इसका कुछ जरूरत नहीं, हम अबाउट वाला होम पेज में ही ऐड करेंगे। हेलो देवी प्रसाद। हेलो। यस सर। ये फिर से ओपन करना, कैसे ओपन करें? मैं नहीं देख पाया बस। कौन सा वाला ओपन करना है? पहले जो किया इसको, इस पेज को पास से करना, स्टार्टिंग से। हाँ ओके ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके। आपको जस्ट ऐसा गूगल साइट्स सर्च करना है, फिर ये जो पहले वाला ऑप्शन आता है गूगल साइट्स .com, इसमें जाना है। तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा पोर्टफोलियो, इसको सिलेक्ट करोगे तो डायरेक्ट आप पोर्टफोलियो के साइट में चले जाओगे। गॉट इट? ओके। ओके ओके, नाउ वी शुड कंटिन्यू। आप सबको तो पेजेस के बारे में पता चल गया होगा, अभी कैसे ऐड करना है न्यू पेज। तो हम इंसर्ट में जाएंगे, इसको पेज को कैसे मॉडिफाई करना है, जो भी सब डिटेल्स देना है हम इंसर्ट में ही देंगे उसको। लाइक यू कैन फाइंड दिस फोर which is text box, images, embed and drive। इसका काम क्या है, टेक्स्ट बॉक्स में आप नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स ही ऐड कर सकते हो। जैसे कि कुछ भी टाइप कर सकते हो, हाय आई एम देवी प्रसाद,
लाइक कुछ भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। और इमेजेस में जाओगे तो आप लोग कोई कुछ भी आपका जो पीसी से कुछ भी इमेजेस ऐड कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो। जैसे कि मैं नॉर्मल एक मेरा वाला फोटो वाला ये ऐड कर रहा हूँ, तो मैंने इसको अपलोड किया तो आपको आप देख सकते हो मैं मेरा फोटो आ गया। तो इमेजेस का काम है ये। आप और एम्बेड का काम क्या है, आप लोग को जैसे पता होगा, जैसे हम लोग पावर बीआई में एक एम्बेड कोड जनरेट कर रहे थे हमारा प्रोजेक्ट शो करने के लिए, पब्लिक शो करने के लिए, तो वही कोड हम इसमें ऐड करेंगे तो वो पावर बीआई का पूरा प्रोजेक्ट आ जाएगा इसमें, डायरेक्ट लिंक आ जाएगा। जैसे कि मैं एक बार आपको शो कर रहा हूँ, ये मेरा एक पावर बीआई का प्रोजेक्ट ओपन है मेरे पास, आप सब देख सकते हो। तो मैं इसको पहले लिंक जनरेट कर रहा हूँ, पब्लिश टू वेब, यही यू कैन सी योर एम्बेड रिपोर्ट पब्लिश टू वेब। आप यहाँ से ये कॉपी कर सकते हो। कोई कुछ पूछ रहा है क्या, या फिर म्यूट में डाल सकते हो। फिर उसके बाद हम इसको वो जो एम्बेड ऑप्शन में इधर हम पेस्ट करेंगे वो लिंक, और आपको ऐसा आ जाएगा, एक होल पेज का ऑप्शन आएगा, फिर पावर बीआई रिपोर्ट का आएगा। तो आप होल पेज में जाओगे तो आपको पूरा पावर बीआई का रिपोर्ट दिखेगा, और पावर ये वाला ऑप्शन से प्रीव्यू ऑप्शन में सिर्फ पावर बीआई का लोगो दिखेगा। तो ये वाला मैं दूसरा एक लेता हूँ, आप एक सेकंड। कर लेते हैं। You can see the whole page of my project. You can insert like this. जैसे कि आपको पूरा ऐसा प्रोजेक्ट दिखेगा, और ये पब्लिश होने के बाद आप यहाँ पे एक ओपन टैब वो बोल के ऑप्शन आएगा, आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको पूरा प्रोजेक्ट दिखेगा। हाँ, और इसके बाद ड्राइव ऑप्शन। ड्राइव ऑप्शन ये होता है कि आपको अगर किसी प्रोजेक्ट जैसे कि एसक्यूएल प्रोजेक्ट हो या फिर एक्सेल का प्रोजेक्ट हो, या वहाँ पे आपको तो कुछ प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, जैसे कि पावर बीआई सर्विस के जैसे प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है लिंक जनरेट करने के लिए, तो आप सबको क्या करना है, आपको एक गूगल ड्राइव में एक फोल्डर बनाना है। वो फोल्डर में आप सबको आपका जो प्रोजेक्ट का पीडीएफ है वो अपलोड करना है और उसको पब्लिक करना है। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मेरा एक प्रोजेक्ट का फोल्डर है। ये यहाँ पे दिख रहा है वो जो पर्सन का सिंबल, तो ये इट मीन्स ये पब्लिक है, इसका कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये मेरा प्रोजेक्ट है, तो इसको मैं डायरेक्ट वो ड्राइव से सिलेक्ट कर सकता हूँ। सपोज मैंने इसको सिलेक्ट किया, इंसर्ट किया, तो आपका जो ड्राइव में जो पीडीएफ रहेगा वो इधर रिप्रेजेंट होगा, और ये इधर सेव रहेगा। कोई भी इसको एनलार्ज करके देखना चाहेगा, जैसे कि कोई रिक्रूटर देखना चाहेगा, तो वो यहाँ पे जो ऑप्शन है ये क्लिक करेगा तो वो डायरेक्टली रिडायरेक्ट हो जाएगा आपका गूगल ड्राइव में, उधर जाके आपका प्रोजेक्ट देख सकता है। लेकिन आपके लिए आपको एक चीज करना है, वो जो गूगल ड्राइव में जहाँ पे आप फोल्डर रखो, फोल्डर में ये प्रोजेक्ट रखोगे, उसको पब्लिक एक्सेस देना है। इट विल लुक लाइक दिस। और ये होने के बाद मैं आपको नेक्स्ट कंटेंट ब्लॉक क्या होता है, जैसे कि आपको ऐसा ब्लॉक दिख रहा है, फोटोज वगैरह ऐड करने के लिए ब्लॉक्स दिख रहा है, और टेक्स्ट ऐड करने के लिए कुछ दिख रहा है, तो आप
Okay, I'm going to say in English. Some of people are requesting to say in English. Okay, we can, as you see those things. I am saying about this text box, image, embed, and drive. In this text box option, we can insert text, uh, anything, any text, and while using this image option, we can upload a image from our device, and when we use this embed option, we can add our links as well as our any embed code like HTML code, you can add here to enhance your portfolio. When or if you go for drive option, you can select any PDF or any other documents from your Google Drive, and for this you have to uh, for this you have to access your give access for this folder. Now we move towards that content blocks. Content blocks means you can select a predefined structure, like predefined format. If you go for the first one, you can add here anything of you can upload. You can add YouTube links on Google Calendar, any anything from your calendar, or you can add also your map, your location, and here you can add or edit text, anything like your project, like I'm going to add a project to my project, this one, the coffee bar sales report. You can add here directly heading the coffee bar report, and also you can add the project content, like I have already added here. I can show you. Here you can see I already added my the things about the project details. You can just add by using ChatGPT and any other platform, any AI tool, and you can create it own. It is not showing because I have to change the color of letter. Wait, इसको हम ब्लैक कलर कर देते हैं तो विजिबल होगा. तो यहाँ पे मेरा, आप जैसे कि आपको पता चल रहा है, मेरा हेडिंग आ गया और उसके बाद मेरा जो भी डिटेल्स है वो आ गया, और यहाँ पे मैं डायरेक्ट ड्राइव से जाके प्रोजेक्ट ऐड कर सकता हूँ. सॉरी, ये गूगल ड्राइव से मेरा वही वाला प्रोजेक्ट ऐड करके दिखाता हूँ. कॉफी बार. And if you want to add means enlarge this, इसको बड़ा करना चाह रहे हो तो इसको ड्रैग करके कैसे भी बड़ा कर सकते हो, और इसको आप इसके नीचे लेना चाह रहे हो तो इसको ऐसा ड्रैग करके नीचे ले सकते हो. ये पूरा ड्रैग एंड ड्रॉप बेस्ड है. कुछ पहले इसको बड़ा करना पड़ेगा आपको, फिर वो ऑटोमेटिक ले लेगा. एंड इसके बाद इधर और भी ऑप्शन है, जैसे कि आप 2 प्रोजेक्ट एक साथ ऐड कर सकते हो, 3 प्रोजेक्ट ऐड कर सकते हो. डिफरेंट टाइप्स ऑफ, यू हैव टू एक्सप्लोर ऑल दिस थिंग. एंड कोई पूछ रहा था जैसे कि HTML वाला ये दे सकते हैं, कुछ तो पूछ रहे थे. तो यहाँ पे एक ऑप्शन है ये सब कोलैप्सेबल ग्रुप, जैसे कि आप ये ऐड करोगे तो आप किसी को भी ऐसा ड्रॉप डाउन जैसे फीचर जैसा ऐड कर सकते हो. ये वाला ऑप्शन दिख रहा है, और ड्रॉप डाउन वाला आप कुछ भी टेक्स्ट
कि इमेजेस या प्रोजेक्ट ऐड करोगे तो इधर एक ड्रॉप डाउन जैसा ऑप्शन आ जाएगा, आप उसको यूज कर सकते हो। And table contents, it means you can add a table of your profile headings like a content page. And image carousel means, it means you can add images which जो कि ऑटोमेटिक, जैसे कि वॉलपेपर में होता है, कुछ समय बाद चेंज होता है तो ऑटोमेटिकली वो स्लाइडिंग होगा। ये वाला ऑप्शन भी है आपको, आप चाहे तो मल्टीपल इमेजेस इधर ऐड करके यूज कर सकते हो। जैसे कि सपोज मैंने ये ऐड किया, ये ऐड किया और ये ऐड किया। एक आपको इसे नीचे थ्री, यू कैन सी दो दिस थ्री डॉट्स बिलो। ये पब्लिश होने के बाद आप ये ऐसा स्क्रॉल होते रहेगा। आप जैसे कि आप दूसरे वेबसाइट वगैरह में देखते होंगे कुछ ऐसा स्लाइडिंग फीचर वगैरह। आफ्टर दैट we move towards our button function. Button function, we can add a customized button here. Like I want to add my LinkedIn profile URL, so I want to insert a button for this LinkedIn। then मेरे को अभी LinkedIn का LinkedIn का प्रोफाइल ऐड करना है, तो मैं इधर जाके LinkedIन का URL इंसर्ट कर दिया तो इधर एक बटन आ गया LinkedIn का। कोई भी अगर ये LinkedIn का बटन क्लिक करेगा तो मेरे को वो डायरेक्ट मेरा पेज देख पाएगा। तो ऐसे ही आप बटन ऐड कर सकते हो। इसका और एक यूज है, ये बटन ऐड करने के टाइम पे आप अगर इसमें कुछ जैसे कि लिंक में आप अगर आपका दूसरा पेज, जैसे कि कॉन्टैक्ट पेज ये मैं ऐड कर रहा हूँ, आप एक कॉन्टैक्ट के लिए होम पेज में एक ऑप्शन रखना है तो ये भी ऐड कर सकते हो। कॉन्टैक्ट उसका नाम ऐड किया और पेज का लोकेशन दे दिया तो इंसर्ट किया तो आपको इधर कॉन्टैक्ट पेज का ही आ गया बटन। और इधर कोई कॉन्टैक्ट में क्लिक करेगा तो डायरेक्टली डायरेक्ट हो जाएगा आपका कॉन्टैक्ट का पेज को। उसके बाद डिवाइडर का ऑप्शन है। डिवाइडर का ऑप्शन से आप मीन्स एक पेज और दूसरे पेज में एक लाइन क्रिएट कर सकते हो उसको सेपरेट करने के लिए। और स्पेसर का भी सेम काम है, और थोड़ा बड़ा वाला स्पेस ऐड करता है स्पेसर दोनों पेज के बीच में। एंड देन सोशल लिंक्स मीन्स आपको कुछ जैसे कि लिंक्डइन, गिटहब, नहीं तो आपका जो यूट्यूब लिंक, ट्विटर लिंक, कुछ भी दे सकते हो इसमें। जैसे कि सपोज मैं इधर लिंक्डइन का इमेज अपलोड कर रहा हूँ, अपलोड करने के बाद इधर लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक दे दूंगा। इंसर्ट किया तो इधर मेरा लिंक्डइन का एक आइकॉन आ जाएगा। जो जो भी आप वहाँ पे फोटो अपलोड करोगे वही आइकन इसमें आ जाएगा। आप इसको डायरेक्ट किधर भी पोस्ट कर सकते हो, किधर भी प्लेस कर सकते हो। जैसे कि मैं इसको ये मेरा प्रोफाइल के पास प्लेस किया और कोई भी ये आइकन को क्लिक करेगा तो डायरेक्टली आपका लिंक्डइन का पेज ओपन हो जाएगा। और हाँ, उससे आगे जाने से पहले मैं इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। ये जो लेफ्ट साइड थ्री ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आप जाके आप कोई भी स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि फॉर्मेट, स्टाइल, कलर वगैरह इधर से कर सकते हो। और आपको बैकग्राउंड में कुछ इमेजेस चाहिए कस्टमाइज, तो आप वहाँ पे जाके इमेजेस ऑप्शन में जाके सपोज मैं ये वाला इमेज ऐड करना चाहता हूँ, ये वाला क्लिक किया तो आप कस्टमाइज इमेज भी दे सकते हो। और ये एंकर इमेज में से आप यूज करके इसको ऊपर नीचे कुछ कहाँ पे भी मूव कर सकते हो, साइड में, ऊपर नीचे। एंड ये दूसरा वाला ऑप्शन जो है रिमूव रीडेबिलिटी, तो आप उसको ब्लर कर सकते हो या एनहांस कर सकते हो। और इसके बाद कलर्स के बाद डुप्लीकेट सिलेक्शन मीन्स आप किसी को सपोज एक टेक्स्ट बॉक्स एंड एक फॉर्मेट बना दिया, ये
इसके रिगार्डिंग सपोज ये वाला दिखा रहा हूँ। आप ये प्रोजेक्ट ऐड किया, इसको आपको कॉपी करना है, मीन्स बार बार नया ऐड करोगे तो आपको फिर से फॉर्मेटिंग, वो टेक्स्ट कलर वगैरह चेंज करना पड़ेगा। तो आपको इसको सेम थिंग दूसरी बार लाना है तो इधर से कॉपी ऑप्शन में क्लिक करोगे तो जो डुप्लीकेट ऑप्शन में सेम थिंग कॉपी हो जाएगा। आप सिर्फ इधर आपको दूसरा प्रोजेक्ट का नाम डालना है, सपोज XYZ कुछ भी आपको ऐड करना है, तो ऐसा दूसरा प्रोजेक्ट का नाम ऐड करना है, कंटेंट चेंज करना है, और इधर आपको ये वाला जो लिंक था इसको डिलीट करके नया ऐड करना है। तो आपको बार बार फॉर्मेटिंग करने का जरूरत नहीं है। और ये वाला डिलीट ऑप्शन है, आपको कुछ डिलीट, ये वाला जो ऐड किया है एक सेक्शन, इसको डिलीट करना है तो आप इधर से डिलीट ऑप्शन से में भी क्लिक कर सकते हो। और हाँ, सोशल लिंक के बाद हम जाएंगे प्लेस, इधर आ, इंसर्ट में आ जाओ। हम जा रहे हैं प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर का काम क्या है, आपको वो एक, जैसे कि पहले बताया था कंटेंट ब्लॉक, वो ऐसे ही ब्लॉक्स ऐड कर देगा आपके लिए। तो आप उसमें कुछ भी, जैसे कि बताया था, मैप्स, कैलेंडर, यूट्यूब लिंक एंड कुछ भी गूगल ड्राइव से कुछ फोटोज वगैरह कुछ भी ऐड कर सकते हो। और यूट्यूब यूट्यूब का ऑप्शन वही है, आपको यूट्यूब का लिंक ऐड करना है तो आप डायरेक्टली ये क्लिक करके यूट्यूब का लिंक दे के यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट करोगे तो यूट्यूब का लिंक ऐड हो जाएगा। और आपको कैलेंडर मीन्स आपका गूगल, सबका जो भी एंड्रॉइड यूजर होंगे उनका जैसे कि गूगल कैलेंडर रहता है, यू कैन ऐड एनी इवेंट और एनीथिंग यू हैव इन योर गूगल कैलेंडर, आप उसको डायरेक्ट इधर ऐड कर सकते हो। मैप में आ जाओगे तो आपको लोकेशन परमिशन देना पड़ेगा, और आपको सपोज करंट लोकेशन है आपका बैंगलोर, आप इधर लोकेशन भी ऐड कर सकते हो। बैंगलोर, बैंगलोर ऐड कर दिया और सिलेक्ट कर दिया तो आपका इधर बैंगलोर का लोकेशन आ जाएगा। सपोज जैसे कि आप कोई रिक्रूटर को ऐसा रहेगा कि मेरे को बैंगलोर वाला ही बंदा चाहिए, तो आप इधर, आपका अगर लोकेशन मेंशन रहेगा बेंगलुरु, तो वो आपको इजीली शॉर्टलिस्ट कर सकता है। मीन्स आपका रिज्यूम देखने के बाद, पोर्टफोलियो देखने के बाद आपको डायरेक्टली शॉर्टलिस्ट कर सकता है। और ऐसे ही आप ये जो डॉक्यूमेंट, स्लाइड्स, शीट्स, गूगल शीट्स, फॉर्म्स, चार्ट, ये सब कुछ भी आप ऐड कर सकते हो। एक्चुअली ये सब का उतना रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी आप ये ऑप्शन दिया है, जैसे कि कुछ किसी किसी का दूसरा प्रोजेक्ट रहेगा गूगल, जैसे गूगल शीट का, और कुछ PPT का प्रोजेक्ट रहेगा, आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो डायरेक्ट इधर से आपको ये मिल जाएगा, पाथ मिल जाएगा, तो आपको डायरेक्ट इधर से ऐड कर सकते हो। ये हो गया हमारा पेजेस का क्या क्या फंक्शन है वगैरह वगैरह। अभी हमको क्या करना है, आपको मैंने बता दिया है सब कुछ ही डिटेल में। अभी मैं मेरा प्रोफाइल में आपको बताता हूँ क्या क्या कैसे कस्टमाइज करना है। जैसे कि आप देख पा रहे हो मेरा होम पेज, पहले आपको ऐसा एक वेलकम नोट लिखना है, और आप किसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, मीन्स कौन सा प्रोफाइल के लिए, वो देना है। फिर आपको कांटेक्ट डिटेल्स दोगे तो अच्छा रहेगा, डायरेक्टली इधर से आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर आपका अबाउट सेक्शन रहेगा। अब फंक्शनल एरियाज ये तो मैंडेटरी नहीं है, आप चाहिए तो ऐड कर सकते हो, नहीं तो नहीं। स्किल्स इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट भी मैंडेटरी नहीं है ऐड करना। आप इसको जैसे कि मेरा एक प्रोजेक्ट सेक्शन अलग है, आप उधर ही ऐड कर सकते हो, मैंने जस्ट एक ओवरव्यू के लिए इधर ऐड किया है। एजुकेशन भी इम्पोर्टेंट है, वर्क एक्सपीरियंस कुछ रहे तो आप ऐड कर सकते हो। और मेन प्रोजेक्ट सेक्शन, आप प्रोजेक्ट सेक्शन आप दो तरीके से ऐड कर सकते हो। आपको ये बताना भूल गया, ये जो ये ऐसा ड्रॉप डाउन फीचर दिखा रहा है, आप इसको यहाँ पे ऐड कर सकते हो पेजेस में जाके। सपोज आपको एक प्रोजेक्ट के अंदर एक दूसरा पेज ऐड करना है, ड्रॉप डाउन वाला, तो 3 डॉट में क्लिक करना है, इधर जो है ऑप्शन है ऐड सब पेज, ये वाला डायरेक्ट क्लिक करोगे तो इधर ऑप्शन आ जाएगा, आप सिर्फ रीनेम करना है इसको। सपोज मैं देखो पावर BI ऐड करूंगा, पावर BI, आप डायरेक्टली पावर BI ऐसे एज ए सब पेज ऐड कर सकते हो। आप ये पावर BI ऐड करोगे तो इधर देखना आपको एक ड्रॉप डाउन मिल जाएगा प्रोजेक्ट पेज के नीचे। सपोज और एक भी ऐड करता हूँ, और सपोज मैं एक्सेल ऐड कर रहा हूँ।
यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा पावर बीआई, एक्सेल, ये ड्रॉप डाउन वाला आ जाएगा। इधर और भी ऑप्शन है लाइक डुप्लीकेट पेज, पेज को डुप्लीकेट कर सकते हो, उसका प्रॉपर्टी चेक कर सकते हो। इसको आपको अगर कुछ चीज रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे, यहाँ से आप डायरेक्ट इसको हाइड करोगे तो वो पेज हाइड हो जाएगा, इधर शो नहीं करेगा। म्हणजे एग्जिस्टिंग आपका पोर्टफोलियो में रहेगा लेकिन दूसरे को शो नहीं करेगा। और डिलीट भी कर सकते हो। और इसके बाद हाँ मैं आप होम पेज सेटअप करने के बाद आपको प्रोजेक्ट पेज में जाना है। प्रोजेक्ट पेज में जैसे कि हम मैंने बताया था ऐसा प्रोजेक्ट ऐड करना है यहाँ पे। आप प्रोजेक्ट पेज में जाने के बाद इधर ऑप्शन आएगा प्रोजेक्ट नेम ऐड करना है। अ, उसके बाद प्रोजेक्ट के डिस्क्रिप्शन जैसे कि क्या क्या परफॉर्मेंस किया है, क्या क्या किया है, जैसे कि मैंने इधर ऐड किया है। सपोज और ये प्रोजेक्ट में जैसे कि मैंने डिस्क्रिप्शन लिखा है डिजाइन एंड डेवलप ए एचआर एनालिटिक डैशबोर्ड बाय यूजिंग पावर बीआई टू एनहांस स्ट्रेटेजी डिसीजन मेकिंग विद द एचआर डिपार्टमेंट। तो आप इसी तरह जो भी आपका नोट्स है या फिर जो भी आपको शो करना है प्रोफाइल में तो वो आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में ऐड कर सकते हो। और इधर आपका जो प्रोजेक्ट का ऑप्शन मैंने बताया था 4 ऑप्शन में से आप टेक्स्ट बॉक्स में कुछ लिख सकते हो, नहीं तो इमेजेस ऐड कर सकते हो, नहीं तो पावर बीआई का जैसे कोड डायरेक्ट इधर पेस्ट कर सकते हो, नहीं तो गूगल ड्राइव से कुछ भी ऐड कर सकते हो। 4 ऑप्शन मिलेगा आपको। तो आप प्रोजेक्ट को डायरेक्ट इधर से ऐड कर सकते हो। सपोज मैं इधर वही पावर बीआई वाला फिर से एक बार ऐड करके दिखाता हूँ। मैं इधर कोड में गया, कोड पेस्ट करने के बाद मैंने पावर बीआई का रिपोर्ट मैंने ऐड किया इधर। और आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरे को ये प्रोजेक्ट ऊपर लेना है और प्रोजेक्ट को नीचे डिस्क्रिप्शन वगैरह को नीचे लेना है, आप इसको सिंपली ऐसा क्लिक करना है, इसको ऐसा ड्रैग करना है नीचे और इधर जिस जहाँ पे आपको ऐसा ब्लू कलर का ऑप्शन दिखेगा वहां पे ऐसा छोड़ देना है। तो ये इसके नीचे एक ही सिंगल ग्रुप में आ गया। और यहाँ पे आपका जो भी डिस्क्रिप्शन है आप ऐड कर सकते हो। जैसे कि मेरा ये वाला सपोज ये डिस्क्रिप्शन में देना चाहता हूँ हेल्थ केयर का, यहाँ पे कॉपी किया, यहाँ पे डायरेक्ट पेस्ट किया। सॉरी, ये कलर चेंज कर देता हूँ एक बार। यहाँ पे आ गया मेरा प्रोजेक्ट के डिटेल्स जो भी था मेरा आ गया। और यहाँ पे मैं हेडिंग में प्रोजेक्ट नेम ऐड कर सकता हूँ हेल्थ केयर एनालिसिस। एनालिसिस एंड ये आप वैसे ही आप मल्टीपल प्रोजेक्ट ऐड कर सकते हो। मैंने जैसे बताया था कि आप ऐसा अगर आपको यहाँ पे ऊपर एक बैनर चाहिए, जैसे कि मैंने इधर ऐड किया है ऐसा पावर बीआई प्रोजेक्ट लिख के यहाँ पे जाके आप यहाँ पे भी ऐड कर सकते हो ऐसा। तो ये ऑप्शन है, सॉरी नेविगेशन का ऑप्शन है। आप इधर लोगो वगैरह भी ऐड कर सकते हो। और आपको हेडर ऐड करना है तो ये प्लस है इधर आप इधर जो ऐड हेडर का ऑप्शन है ऐड हेडर क्लिक करोगे तो इधर हेडर का एक ऑप्शन आ जाएगा और आपका पेज के नाम के साथ आ जाएगा। आप इसको कुछ भी दे सकते हो, जैसे कि सपोज मैं माई प्रोजेक्ट दे दिया, माई प्रोजेक्ट दे दिया एंड प्रोजेक्ट के नीचे सब कुछ आ गया। मैं इसको थोड़ा कस्टमाइज करने के लिए गूगल आर्टिकल करके इसको एक ही ग्रुप क्रिएट करता हूँ। इसको लेके यहाँ पे वो ब्लू कलर में छोड़ दिया तो एक ही ग्रुप हो गया, तो एक ही प्रोजेक्ट का मेरा डिटेल्स आ गया। आप वैसे भी मल्टीपल प्रोजेक्ट यहाँ पे ऐड कर सकते हो नीचे नीचे करके। नहीं आप हेडिंग भी दूसरा दे सकते हो, सपोज पावर बीआई प्रोजेक्ट के लिए दूसरा दे सकते हो, एक्सेल प्रोजेक्ट के लिए, एसक्यूएल प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग दे सकते हो। और लास्ट में हम जाएंगे कॉन्टैक्ट डिटेल्स। कॉन्टैक्ट पेज में आप वैसे ही सेम सेम थिंग आपको ऐसा हेडर कुछ भी ऐड करना है कॉन्टैक्ट, जैसे कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में होम पेज में कॉन्टैक्ट ऐड करने के लिए। तो आप वहां से भी डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हो कुछ, जैसे कि मैंने इधर ऐड किया था जो लिंक्डइन लिंक्डइन वाला ऐड किया था, इसको कॉपी किया, कॉपी पेस्ट हो नहीं, कॉपी पेस्ट शायद नहीं होगा, आपको वहां पे क्रिएट करना पड़ेगा, सॉरी।
यहाँ पे डायरेक्ट जाके आपको एक टेक्स्ट बॉक्स में भी लिख सकते हो। सपोज आपको कौन फोन नंबर देना है, कॉन्टैक्ट नंबर सपोज जो भी है, आप रैंडमली कुछ दे सकते हो। आप 918 कॉन्टैक्ट नेम, आपका कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हो, और मैं इधर रैंडमली दे दिया। आप आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे सकते हो, और ये जो ऊपर आपका बॉक्स दिख रहा है, आप टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग कर सकते हो। ये तो नॉर्मल एक्सेल पावर पॉइंट वगैरह में होता है, तो मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। जैसे कि आप इसको टाइटल करना है या हेडिंग करना है, सब हेडिंग स्मॉल टेक्स्ट आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि सपोज मेरे को हेडिंग करना है, और ये आप फॉन्ट सब चेंज कर सकते हो। देयर आर मल्टीपल फॉन्ट ऑप्शन, और इधर आपको साइज भी ऐड कर सकते हो। जैसे कि सपोज इसको मेरे को इंक्रीज करना है, तो सिलेक्ट करके साइज चेंज करोगे तो साइज चेंज हो जाएगा। फिर इसको बोल्ड करना है तो बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो, और इधर आपको टेक्स्ट कलर भी चेंज कर सकते हो। और इम्पोर्टेंट थिंग आपको इसमें ये टेक्स्ट में कुछ अगर लिंक आपको ऐड करना है, सपोज ये टेक्स्ट को क्लिक करने से वो लिंक रीडायरेक्ट होगा, तो यहाँ पे आपका लिंक का ऑप्शन है। आप यहाँ पे आप डायरेक्ट लिंक पेस्ट कर सकते हो, नहीं तो आपको सपोज ये पे ऐसा रहेगा कि ये टेक्स्ट को क्लिक करने से मेरे को मेरा प्रोजेक्ट पेज ओपन हो जाए, तो आप ये पेज डिटेल्स भी यहाँ पे दे सकते हो। इसको जो भी क्लिक करेगा वो डायरेक्ट प्रोजेक्ट पेज पे ही आ जाएगा। तो ये एक स्पेशल फीचर है, आप यूज कर सकते हो। बाकी इसमें और कुछ हाँ, ये होने के बाद आपको पब्लिश करना है। हाँ, पब्लिश करने के टाइम पे होम पेज में जाना है आपको, और इसको जो भी आपके हिसाब से जो भी अरेंज करना है। सपोज मेरे को ये नहीं चाहिए, मैं डिलीट कर रहा हूँ। ये वाला भी नहीं चाहिए, ये वाला भी नहीं चाहिए, ये इधर में ये वाला ऐड कर देता हूँ। इसको आप ड्रैग ड्रैग करके किधर भी प्लेस कर सकते हैं आपके हिसाब से। इधर में मेरा नाम लिख देता हूँ, देवी प्रसाद। जो भी है इधर, ये तो प्रोजेक्ट वाला भी नहीं चाहिए। यहाँ पे प्रोजेक्ट पेज दूसरा है, इसको भी डिलीट करिए। इसको भी, ये भी नहीं चाहिए मेरे को। हाँ, यहाँ पे आपका कुछ भी अबाउट सेक्शन जो भी है आप ऐड कर सकते हो। सपोज मेरा अबाउट सेक्शन में इधर से डायरेक्ट से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ये व्हाइट कलर में इसलिए नहीं दिख रहा है, ब्लैक करना। इधर मेरा अबाउट सेक्शन आ गया। मैं इधर सपोज कुछ हेडिंग देना चाहता हूँ, तो टेक्स्ट बॉक्स ऐड करूंगा उधर। इधर अबाउट मी, इसको ड्रा करके ब्लू कलर में ऐड करूंगा, तो वो एक ही पैराग्राफ में आ जाएगा, एक ही प्लेस में आ जाएगा। सपोज ये मेरा अभी पोर्टफोलियो रेडी हो गया, मैं इसको पब्लिश करूंगा। तो पब्लिश करने के टाइम पे आपको ये डायरेक्ट पब्लिश का जो ऑप्शन है वहां पे क्लिक करना है, और यहाँ पे ये जो वेब एड्रेस दिख रहा है, ये वेब एड्रेस को में आपको आपके हिसाब से, जैसे कि डोमेन नेम रहता है कुछ कंपनीज का, तो कस्टमर कस्टमर डोमेन नेम वो रहता है। आपको आपके हिसाब से नाम देना है। सपोज मेरा को ऐसा चाहिए कि मेरा वेबसाइट का आखिरी में मेरा मेरा नाम ही चाहिए, तो मैं इधर डायरेक्ट देवी प्रसाद ही ऐड कर दूंगा। देवी प्रसाद ऐड कर दिया। सपोज और कुछ, सपोज देवी प्रसाद अंडरस्कोर मी, ऐसा कुछ कुछ भी कस्टमाइज आप दे सकते हो। आपको सिर्फ इतना ही ऐड करना है, और इधर दिखा देगा। और कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा तो ये नीचे दिखा देगा। सपोज लोअर केस लेटर नंबर एंड डैशेस, ये डैशेस अलाउ नहीं कर रहा है, तो इसीलिए मैं निकाल दिया।
और इधर अगर ब्लू टिक दिखाएगा तो मीन्स आप जो वेब एड्रेस दिया हो वो किसी ने किसी दूसरे ने नहीं लिया और ये यूनिक है और आप यूज कर सकते हो। तो आप इसको डायरेक्ट पब्लिश करोगे। पब्लिश करने के बाद आपको जैसे पहले बताया था, पब्लिश करने के बाद ही ये वाला लिंक ऑप्शन हाईलाइट होगा। अभी देखो ये वाला हाईलाइट हो गया। आप इस पे क्लिक करोगे तो आपका डायरेक्ट जो पब्लिश साइट लिंक है वो डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे कि मैंने देवी प्रसाद मी दिया था और ये मेरा होम पेज है, तो ये आ गया देवी प्रसाद मी होम पेज। तो कोई भी डायरेक्ट ये आप इसको कॉपी करके किसी को भेज सकते हो। कोई इसको डायरेक्ट क्लिक करेगा तो डायरेक्ट आपका होम पेज में ही आ जाएगा। सपोज जैसे कि मैं एक नया टैब में इसको पेस्ट कर रहा हूँ यूआरएल। मैंने इधर पेस्ट किया और इसको एंटर किया, तो जो मैंने बनाया था जो वाला प्रोफाइल वहां पे मैं आ गया। जैसे कि देवी आई एम देवी प्रसाद, आप सब देख पा रहे होगे। मैंने ये फ्रंट पेज में एक ये वाला प्रोजेक्ट ऐड किया था, लोकेशन ऐड किया था, लिंक्डइन और कॉन्टैक्ट पेज। जैसे कि बोल रहा था कॉन्टैक्ट को क्लिक करोगे तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट पेज में चले जाओगे। तो इसको क्लिक करोगे, देखो क्लिक किया तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट पेज में आ गया। और मैंने ये भी बताया था इसको हमने एक लिंक दिया था, तो इसको क्लिक करेंगे जैसे कि प्रोजेक्ट पेज में आ सकते हैं। तो इसको क्लिक करेंगे तो हम डायरेक्ट प्रोजेक्ट पेज में आ गए। तो जो भी हमने उधर रिलेशनशिप दिया था, जिसको जो भी लिंक दिया था, जिसके साथ जिसको लिंक किया था वो सब इधर वर्क करेगा। आप चेक कर सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे दो ऑप्शन आएगा आपको। आप इसको अगर आगे जाके फिर से कुछ चेंजेस करने वाले हो, एडिट करने का सोच रहे हो, तो इधर आपको ऑप्शन मिल जाएगा एडिट का। एडिट दिस पेज ऑप्शन है, ये आप यूज कर सकते हो। और ये करोगे तो आपका फिर से वो एडिट वाला पेज ओपन हो जाएगा। आप डायरेक्ट इधर से एडिट कर सकते हो। नहीं तो आपको अगर, और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, आई बटन दिखा रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हो ये। जैसे कि पेज कब भी अपडेट हुआ था यहाँ पे दिखाएगा। मीन्स आपको सपोज कोई रिक्रूटर देखेगा तो ये जो हमेशा अपडेटेड रह रहा है कि नहीं रह रहा है, या ये 2-4 साल पहले हुआ है। तो इसको बीच बीच में से अपडेट कुछ करोगे तो बेटर रहेगा। सामने वाला थोड़ा रहेगा कि ये सीरियस है जॉब को लेके वगैरह वगैरह। और यहाँ पे जैसे कि एक सर्च बार का ऑप्शन आता है, कोई भी ये दूसरे जो व्यूअर है उसके लिए। किसी को आपको प्रोफाइल में कुछ सर्च करना है तो यहाँ पे सर्च कर सकता है। जैसे कि कॉन्टैक्ट सर्च करना है, कॉन्टैक्ट सर्च किया तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट जहाँ पे है वहाँ दिखा देगा उसको। तो ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो ओके दैट मच। अभी तो मैंने आप सबको बता दिया कैसे बनाना है, कैसे पब्लिश करना है, सब कुछ बता दिया। और आप लोग का कुछ डाउट है तो आप अभी पूछ सकते हो। और वैसे भी तो बाकी सब कुछ कवर किया मैंने। मीन्स कैसे क्या करना है और प्रोसेस से लेके और पब्लिश तक सब मैंने कवर किया है। फिर भी आपको एक बार ये दिखा देता हूँ इससे पहले कि आपके मन में डाउट हो। किसी को अगर गूगल साइट में नहीं बनाना है और दूसरे कुछ रेफरेंस चाहिए तो मेरे पास और भी ऑप्शन है, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि आप कुछ ये प्लेटफॉर्म्स है गूगल साइट्स के बाद मार्वेन एनालिटिक्स, विक्स, ब्लॉगर, डायरेक्ट यहाँ पे भी आपका खुद का वेबसाइट पोर्टफोलियो बना सकते हैं। नहीं तो यू कैन यूज पावर पॉइंट और कानवा फॉर प्रेजेंटेशन। जैसे कि ये सपोज आपको ये पोर्टफोलियो बनाने के बाद आप किसी को प्रेजेंट करना है तो उसके लिए भी मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाया था कैनवा में। मैं आपको शो कर रहा हूँ। आप वैसे डायरेक्ट ये वाला कैनवा में भी बना के शो कर सकते हो। जैसे कि सब आप फ्रंट पेज में वहां पे जैसे ऐड किया था, फ्रंट फ्रंट पेज में वही सब ऐड करना है, लिंक्स वगैरह, कॉन्टैक्ट डिटेल और अबाउट सेक्शन, उसके बाद फंक्शनल एरियाज, उसके बाद टेक्निकल स्किल्स। वही सब है जो वहाँ पे ऐड किया था, ये है। लेकिन ये एक फाइल फॉर्मेट में। तो एजुकेशन, उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस, उसके बाद प्रोजेक्ट सेक्शन है जो ये यहाँ पे मैंने जो क्लिक हियर दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट प्रोजेक्ट सेक्शन में जा सकते हो मेरा पेज का। तो ये पूरा इंटरेक्टिव मैंने बना है। तो ऐसा नहीं कि आपको ऐसा ही करना है।
आप नॉर्मल भी यूज कर सकते हो, मीन्स डायरेक्ट पेज ही क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने जैसे कि वो प्रोजेक्ट का इमेज डाला है, और प्रोजेक्ट का लिंक भी ऐड किया है मैंने। और ये मेरा जो भी जितना भी प्रोजेक्ट है आप देख सकते हो, प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का नेम है, लिंक है। प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि मैंने डायरेक्ट लिंक दिया है, और मेरा पोर्टफोलियो में पूरा डिटेल्स ऐड है। तो ये यहाँ पे अगर सब डिटेल्स दे दूंगा तो कोई मेरा पोर्टफोलियो विजिट नहीं करेगा। तो पोर्टफोलियो में भी जाके विजिट करना चाहिए उनको। वो एक शो केस के लिए, आपका प्रोजेक्ट शो के लिए वो अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो मैंने ऐसा बनाया है। आप इधर मैंने पोर्टफोलियो का भी लिंक ऐड कर दिया है, जैसे कि कोई सिलेक्ट एक क्लिक कर में सिलेक्ट करेगा तो डायरेक्ट मेरा पोर्टफोलियो में चला जाएगा। तो ये भी आप एक कैनवा, ये मैंने कैनवा में बनाया है, आप कैनवा में नहीं तो पावर पॉइंट में कुछ भी किधर भी बना सकते हो। और ये मैंने पीपीटी बनाया था आज के लर्निंग के लिए। किसी को कुछ डाउट है तो मैं ये वाला पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा, तो आप ये प्रोसेस आपको मिल जाएगा कैसे क्या बनाना है। और वैसे भी रिकॉर्डिंग भी मिल सारा शायद प्रोवाइड करेंगे, और आप ये भी रेफर कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।